Hey everyone, I hope you're doing well. This is a continuation of the session Elements, Compounds, and Mixture. So, we're going to continue this session, and today we're going to study more about elements and compounds. We're going to study about the properties of different types of elements. We're going to talk about atomicity, classification of elements, atomicity, and whatnot. More examples, more explanations, and a small recapitulation of the previous class, which I'm going to do. Please follow this PDF, and you may use it to make notes. You may study this, and I hope you have a book. But if you don't, you can just follow this. Most probably, this will be the internal contents of the book. If anything is not in this PDF or I've not taught in the session, you may feel free to ask the question in the comments, and I'll try my best to answer it. So, elements and compounds. You know what are elements and compounds? Just a small recap. Elements are pure substances and they are homogeneous substances. Homogeneous substances meaning that they are pure, they are uniform in appearance, while mixtures are impure, which we'll study in future. Pure substances, what are they? Pure substances have a definite chemical composition, meaning they have an exact chemical composition, and physical and chemical properties. The physical chemical properties are fixed. They are all homogeneous, all pure substances, and their composition is uniform throughout the bulk, meaning they are homogeneous. Okay. An element is a pure substance which cannot be converted into anything simpler than itself by any physical or chemical process, because as I told you in previous class, a substance which is already in its simplest form cannot be simplified even more. The headings are a bit complicated, like in a bit complex language, but I'm just going to explain. Don't consider the headings. Introduction and inherent characteristics of elements. Achha. Elements are widely distributed in Earth's crust in a free state as well as in combined states. So, what do you understand by free state and combined state? Free state meaning in its own form, it is only that element, and combined state means they are found mixed with other elements. Okay, at present, how many elements are there? I hope you have studied in class 7. 118 elements are known, out of which there can be more. There can be more than 118 elements, but we only know 118 elements. 92 are naturally occurring, while the rest 26 are artificially created, meaning it is done by us. They're also known as transuranium elements because they're created by humans. Characteristics of elements, as I told you, elements are substances which cannot be broken down into a simpler form. They are the simplest type of pure and homogeneous mixture substance. Chemical indivisibility, meaning they cannot be divided more. Okay, same thing, simplicity, just written in another language. They cannot be broken down into more simpler substances that exhibit properties of that element. Physical constants, meaning they possess characteristics, fixed melting and boiling points. Elements have fixed characteristics, as I told you. Atomic uniformity, each element consist only one kind of atoms. They only consist one type of atoms, as I told you. The atoms of each element differ in properties from the atoms of other elements. They differ, they change. Like, for example, sodium and aluminum. Sodium will have different chemical properties, aluminum will have different chemical properties. This is a bad example because they are both under metals, so they'll more or less have a similar properties. But if I consider a non-metal and a metal like sodium and hydrogen, they'll definitely have different chemical properties, maybe even physical. Symbolic representation, as I taught you in previous class, this is just the revision. This is just the revision. Don't mind my please don't mind my handwriting. Yeah. So each element is represented by a
specific symbol, which is a single letter or two letter of the English alphabet taken from the English or Latin name. It serves as a shorthand notation of the full name of that element, representing a single atom of that element. I explained these things in a detailed manner in the previous session. So if you have not watched it, please go ahead, pause the video, watch that video, then come back to this video. Otherwise, you won't be able to understand what I'm going to teach now. Okay? Chemical reactivity. Chemical reactivity. Elements can react chemically with other elements and compounds to form complete and new substances. For example, H2, as I've taught you, H2O, hydrogen plus oxygen, H2O. So remember, as I told you, combustible gas, this is a gas, this is a L liquid, this is a, sorry, my bad, gas, yeah, H2O, it's a water. They have completely different chemical properties, which tell us what elements form compounds. Okay, compounds are not the simplest form. That means we can break down compounds by using chemical complex or easy ones, or by chemically they can be separated. For example, H2O can be proper way, which you can check it out if you want. Now we're going to talk about classification of elements. You know, elements have classification. You'll say, then how can you say that they are the simplest form? No, they are in the simplest form. They are pure substances, but they are classified. You know what is classification? Classification is grouping of some things into a specific group on the basis of the similarities. Some elements they found to have high boiling points, or they have a good conductivity of electricity and heat, whereas some elements they found the opposite of what they found the previous: low boiling point, no conductivity of electricity or heat. What they did was they separated it in different groups. Elements are classified into metals. Elements are, I'm going to just take this piece just to explain. Metals are classified into, my bad, extremely sorry. Elements are classified into, first of all, metals. They have some. Most of the elements are metals. Then the properties opposite to the metals, मतलब जो metals में पाया जाता है जो properties, वो properties metals में, non metals में नहीं पाया जाता है. Exceptions है पर नहीं पाया जाता है mostly. तो इसको non metals कहा जाता है. This is number 2. Now, then they found that few substances have both the properties of metals and both the properties of non-metals. Like, for example, कोई metalloid को ले लो जिसमें high boiling point, but no conductivity of electricity nor heat. That's why they were एक और आता है जिसको कहते हैं हम लोग metalloids. समझ आया? Then comes वो elements जो कि सिर्फ elements, नाम के elements हैं, उनका कोई काम नहीं है. Exceptions are there, but उनका कोई ज़्यादा काम नहीं है. मतलब वो लोग ऐसे ही exist करते हैं. Why? Due to highly stable electronic configuration. I'll tell you what is that. We'll study in the atomic structure chapter. So they are classified into inert gases. They do not react. मतलब जैसे आपको मालूम है, कंपाउंड बनने के लिए केमिकल रिएक्शन होता है जो कि एलिमेंट प्लस एलिमेंट, या फिर बहुत सारे हो सकते हैं, 2 से 3 हो सकते हैं, फिर 2 or more, ऐसे ही लो 2 or more. When they combine, केमिकल रिएक्शन होता है, आपको मालूम ही होगा. सो ये केमिकल रिएक्शन जब होता है उससे ही E plus C equals to C, as you remember.
सो इट हैपेंस ड्यू टू केमिकल रिएक्शन. पर इनर्ट गैसेस कोई रिएक्ट ही नहीं करते. वो कारण है कि ये लोग रिएक्शन क्यों करते हैं. आप एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे क्यों का आंसर आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी, जो अगर आपके माथे में आ रहा है. पर वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अभी, तो हम लोग उस पर नहीं चाहते. केमिकल रिएक्शन होगा, पर जब हम लोग इनर्ट गैसेस को कुछ और मेटल से या फिर नॉन मेटल से फिर इनर्ट गैसेस करते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होता यूजुअली. बट ज़ेनॉन एक्सेप्शन है, क्योंकि होता है केमिकल रिएक्शन. को मालूम होगा, बताऊंगा मैं. सो दिस PDF has been made by the book Selena Concise Chemistry Class 8. I have taken it. I've sent the photo and PDF has been made. Okay. I've taught this. So let's give a tick. Types of elements, general properties are from textbooks to shows. They consider unique metallic luster. Let's not underline it. Looks very bad. Possesses unique metallic luster. Luster यानी शाइन. आप मेटल्स को देखेंगे वो शाइन करते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं, डल नहीं होते, है ना. मोस्टली हार्ड सॉलिड्स, मतलब मेटल्स का रूम टेम्परेचर में स्टेट रहता है. यू हैव स्टडीड द मैटर चैप्टर सॉलिड लिक्विड गैस. तो ये लोग रूम टेम्परेचर में भी सॉलिड ही रहते हैं, ठीक है. और मैलिएबल एंड डक्टाइल. मैलिएबल का मतलब मैलिएबल मतलब उसको आप शीट से बना सकते हैं, ओके. डक्टाइल मतलब उसका वायर्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. समझे आप? आपको समझ आ गया? आई होप यू हैव अंडरस्टूड. दैट्स ग्रेट. If you have not, please make sure to leave a comment or just replay the video once. You should try to understand or ask any question that you do not understand. I'll try to my best to explain it in the comment section. Yeah. Good conductors of heat and electricity. मतलब कंडक्टर का अगर आपको मतलब नहीं पता, मैंने बहुत बार यूज़ किया है. कंडक्टर का मतलब होता है मतलब वो कोई चीज़, अगर किसी चीज़ का इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, मतलब it allows electricity to pass through it. Okay, metals usually allow electricity to pass through it. इसलिए कोई एक चीज बता दूं, फन फैक्ट. पानी में एक्चुअली में इट इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बोलोगे कुछ भी बोलता, आपको पढ़ाना नहीं आता. अरे नहीं, डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्यों? डिस्टिल्ड वाटर प्योर रहता है. उसमें हम लोग जब उबालते हैं, आपको डिस्टिलेशन पढ़े होंगे आप 7 में, तो अगर आप पढ़े होंगे आपको मालूम होगा. डिस्टिलेशन जब करते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फिर डिस्टिलेशन करते हैं, वाटर को प्योर फॉर्म में ले आते हैं हम लोग. बहुत कम समय के लिए रहता है, क्योंकि वो एक्सपोज हो जाता है एटमोसफियर से, और वो अगेन प्योर हो जाता है टू सर्टेन लेवल. बट वी स्टिल acquire pure water for a specific amount of time and up to a specific composition. उसमें क्या होता है, पर हम लोग जो पानी यूज़ करते हैं वो डिस्टिल्ड वाटर नहीं होता. उसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स थोड़ा अमाउंट में होता है, हमारे बॉडी में भी रहते हैं, बट वो लिमिटेड क्वांटिटी में ही अच्छे हैं, वरना अच्छे नहीं है वो, ठीक है. वो क्या होता है, एज यू नो मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो अगर आप टैप वाटर को लेके आप भीगे उंगली से आप कुछ इलेक्ट्रिसिटी से कुछ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा शॉक लग जाएगा. प्लीज डोंट ट्राई इट एट होम. दिस वाज जस्ट अ फन फैक्ट, जस्ट इन्फॉर्म कि पानी एक्चुअली में कंडक्टर नहीं होता, पर उसमें मेटल्स रहते हैं ट्रेसेस में, इसलिए हम लोग को करंट लग जाता है, ठीक है. समझ आ गया? मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके. हाईली सोनरस, हाँ मैं बोलना भूल गया, कंडक्टर ऑफ हीट. हीट मतलब इट अलाउज हीट टू पास थ्रू इट. अगेन सेम थिंग. हाईली सोनरस अंडरलाइन नहीं करना है. हाईली सोनरस मतलब अगर आप उसको मारोगे टंग करके तो आपको एक आवाज़ आएगा जोर का. एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं. मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन, लेड, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सोडियम, पोटेशियम. अच्छा, ये एक्सेप्शन थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि हर केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस. You need to remember the exceptions. The questions are asked the most from exceptions. ठीक है. कुछ एक्सेप्शंस होते हैं मेटल्स के, जैसे हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े. एक्सेप्शंस क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े, पर कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि वो प्रॉपर्टीज को कुछ प्रॉपर्टीज को वो फॉलो नहीं करते हैं, पर मोस्ट ऑफ द करते हैं, इसलिए वो मेटल्स में ही आते हैं.
ठीक है, वो एक्सेप्शंस रहते हैं। अच्छा, मैंने क्या बोला कि मेटल्स आर हार्ड एट रूम टेम्परेचर, याद है? पर सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स, दे आर सॉफ्ट। आप उसको रूम टेम्परेचर में वो सॉफ्ट होते हैं, लिक्विड नहीं होते पर सॉफ्ट होते हैं। और हाँ, वो हार्ड भी होते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल है गोल्ड। गोल्ड इज ऑल्सो सॉफ्ट, इट्स ऑल्सो अ मेटल, ओके। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये सही चीज़ है, ये एक एक्सेप्शन है। जिससे हम लोग पढ़े थे कि मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड इन रूम टेम्परेचर, बट मर्क्यूरी इज लिक्विड, क्योंकि हम लोग थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं तो रूम टेम्परेचर ही रहता है ना वो। अगर हम लोग किसी बॉडी का टेम्परेचर नहीं माप रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, मेजर नहीं कर रहे, तो अगर आप ऐसे ही रखो तो भी वो तो लिक्विड ही रहता है। सो इट्स अ लिक्विड। जिंक ब्रिटल होता है, ब्रिटल यानी to pass through. These are examples, sorry, exceptions which are important. Please at least note these down if you're not taking notes, but at least just take a screenshot of this or just note these down, because these are going to come in exam, at least in subjective objective questions, or maybe in subjective question. Yeah, let's talk about non-metals. Non-metals are comparatively in a lesser amount than that of metals, because only 11. ये नंबर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, कोई फायदा कुछ इसका नो वे आउट ऑफ रिमेंबर देम, ओके। 9 वापस रिकैपिचुलेट कर लेते हैं हम लोग एक बार। 118 elements are known, 22 are naturally occurring, 26 are artificially created, or also known as trans-uranium elements. We know very few non-metals. अच्छा, 11 non-metals रहते हैं, excluding noble gas, ये याद रखिएगा। तो नॉन मेटल्स नाम में आपको मालूम पड़ रहा है कि मेटल्स नहीं है, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज भी पूरे मेटल्स से ऑपोजिट है। मतलब exist in across all three physical states in room temperature। मतलब वो सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है और गैस में भी है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नॉन मेटल possess no luster, मतलब वो शाइन नहीं करते, काफ़ी डल है, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड्स आर देयर, लिक्विड्स और गैसेस, नीदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल, ना उसको शीट्स में डाला जा सकता है ना उसको वायर्स में कर सकते हैं, मतलब वो ब्रिटल है। बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, they do not allow electricity or heat to pass through them। नॉन सोनरस, अगर आप उसको टंग करके बजाओगे तो आपको ज़्यादा कुछ आवाज़ नहीं आएगा, ओके। तो इसमें एग्जाम्पल्स बढ़ते हैं, ये लर्न कर लीजिएगा, ये तो आपको सभी करना, सब करेंगे तो अच्छा रहेगा, you'll help you in the future। Examples are hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon, phosphorus, sulfur। We'll study about the symbols later on. I've also explained in the previous class, but still we're going to study in a detailed manner this class। Notable exceptions again, very important। स्टार मतलब important। आयोडीन एंड ग्रेफाइट possess luster। ये दो ही ऐसे एक्सेप्शंस हैं, मतलब ये दो ही ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिसमें थोड़ा शाइन है, शाइन तो है इन दोनों में, ठीक है। आपस में बता देता हूँ एक्सेप्शंस, मतलब कि अगर एक अलग है तो फिर कभी क्यों नहीं इसमें मेटल्स में डाल दिया गया है। एक्सेप्शंस, आप सोचो कि एक्सेप्शंस है तो फिर ऑपोजिट वाले में, फॉर एग्जांपल आयोडीन एंड ग्रेफाइट, दे पोसेस लस्टर, तो फिर मेटल्स में ही क्यों नहीं डाल देते हम लोग उसको, और वाइस वर्सा विद मेटल्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन लोग का ज़्यादातर प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स जैसा है, पर एक या फिर दो प्रॉपर्टी कि कुछ एलिमेंट्स का फिर नॉन मेटल्स का मेटल जैसा है, इसलिए लोग उसको क्या कंसिडर करते हैं, एक्सेप्शंस की तरफ। अच्छा, डायमंड मतलब हार्डेस्ट naturally occurring substance। अच्छा, डायमंड एक्चुअली इट इज नॉट डायमंड बट इट्स मेड अप ऑफ what? It is made up of carbon, okay। या मेटामॉर्फोस्ड, मतलब मेटामॉर्फोस्ड मतलब होता है कार्बन तो अर्थ के अंदर रहता है, क्योंकि अर्थ के अंदर हीट रहता है, हीट और ऊपर सॉइल के प्रेशर के कारण
वो मेटामॉर्फोस होकर डायमंड बन जाता है. दैट्स द थिंग. Carbon fiber is ductile. Remember, bromine is the only non-liquid non-metal. ठीक है. So वो सिर्फ ही एक है. It's the only liquid non-metal. Graphite, good conductor of electricity. Exceptions, these are important. Most probably you will get this one or sorry. Most probably you will get this one or this one. Remember this. Maybe even this one you can get. This one. Diamond one. चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेटलॉइड्स. अच्छा कैसा नाम है भाई, इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को. अच्छा बता देता हूँ क्या होता है मेटल नॉन मेटलॉइड्स. माय बैड. मेटलॉइड्स वो चीज होते हैं जिनमें थोड़े मेटल्स के प्रॉपर्टीज होते हैं और थोड़े नॉन मेटल्स के भी प्रॉपर्टीज होते हैं. they have both the properties of metals and non-metals, some of metals and some of non-metals. Is that understood? Yeah. So elements showing borderline properties of both metals and non-metals, they're naturally hard solids. They're naturally hard. Okay. Examples are boron, silicon. बाकी सब मैं पता नहीं क्यों में सिंबल नहीं लिखा था, मैं लिखना चाहिए. आर्सेनिक, एंटीमोनी, Sb रहता है. जर्मेनियम, Je, टेलुरियम, Te. लैटिन नेम है क्योंकि इसलिए Sb रहता है, याद रखिएगा. ये आपका शायद सबको टास्क दूँ मैं. हाँ ठीक है. आपका टास्क है कि आप खोज के लाइएगा एंटीमोनी का लैटिन नेम, जो कि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा. मतलब इसका कोई एक्सेप्शंस नहीं है. none explicitly listed in the text. अच्छा पूरा बुक का ये लोग ऐसे करता है. हाँ, noble and unit gases, monoatomic gases that are highly unreactive and do not react chemically with other elements or compounds. अच्छा जैसे मैंने बताया ये लोग गैसेस होते हैं, इनर्ट गैसेस नाम से पता चल रहा है. ये मोनोएटॉमिक होते हैं. मोनोएटॉमिक अगर आपको नहीं मालूम, मोनोएटॉमिक मतलब किसी चीज में नंबर ऑफ एटम्स, मतलब मोनोएटॉमिक मतलब इसमें सिर्फ एक ही एटम से वो एक एलिमेंट बना है, एक ही एटम से. ओके. gaseous elements, these are gases and they're highly unreactive, मतलब कुछ काम ही नहीं उन लोगों का, and they do not react with any elements or compounds. This chemical inertness is due to their highly stable electronic configuration. अगर आप ये लर्न कर लीजिएगा अभी के लिए, अगर आप फ्यूचर में ये पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा. आप ये आराम से समझ जाएंगे, आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा. अगर आपको ये इसके ये अगर है सिलेबस में और एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं, अनफॉर्चुनेटली हैव टू लर्न इट अप, मर्क इट अप, एंड इफ यू रिमेंबर, बट बिकॉज दिस इज अ क्लास 8 concept, if it is with atomic structure then it's great, then you do not have to learn it up, you can just understand and just remember the keywords. But just let me briefly explain, I can't go into much details with context to the atomic structure chapter. इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हीलियम possesses a stable duplet to outer electrons, while the remaining gases possess stable octet 8 outer electrons found in air in traces. मतलब एयर में सिर्फ थोड़े अमाउंट में मिलते हैं. अच्छा ये गलत किया. सिर्फ यहाँ तक ही आपको लर्न करना है जो मैंने अंडरलाइन किया है, सिर्फ वही लर्न करना है. और ब्रैकेट में जो दिया है वो भी आपको वो डेफिनेशन है, डेफिनेशन टाइप का है. ठीक है, डेफिनेशन ही. हाँ, तो फाउंड इन एयर इन ट्रेसेस मतलब सिर्फ छोटे अमाउंट में मिलते हैं, ज़्यादा अमाउंट में नहीं मिलते. अगर आपने ज्योग्राफी में वो कंपोजिशन ऑफ एयर पढ़ा होगा तो अगर आपको याद होगा, सर्कल था 78% ऑफ नाइट्रोजन, 21% ऑफ ऑक्सीजन, 1% आर्गन, ओके, डस्ट, वाटर वेपर, ये सब था. 99% ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन था. ठीक है, अगर आपको याद होगा तो आप पढ़े होगे तो आपको याद होगा. माय बैड. ओनली 6 इन टोटल नंबर, सिर्फ 6 यूनिट गैसेस है. और बता देता हूँ मैं, एक ज़ेनॉन का एक एक्सेप्शन रहता है. ज़ेनॉन एक फॉर्म करता है, ये याद रखिएगा आप. ये गलत है. दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट. ये एक फ्लोरीन है. F is
फ्लोरीन, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अरे यार फ्लोरीन का स्पेलिंग क्या होता है? सी जस्ट अ सेकंड। हाँ मिल गया। फ्लोरीन है ये जेनॉन से मिलकर ये बनता है। फ्लोरीन का रहता है वैलेंसी, दोनों का ही वन रहता है, तो वन 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 हो जाता है। अगर आपको इसको मैंने आपको याद होगा तो फिर आप समझ गए होंगे। इनको नहीं याद है फिर आप फ्यूचर में पढ़ेंगे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में, इसलिए बेसिक्स क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए इतना मेरे को समझाना नहीं चाहिए, पर आप जिन लोगों का बेसिक्स क्लियर नहीं है, दोज आर लुकिंग फॉर channel that explains everything in from basics. So I'm doing that. I'm trying my best to explain whatever the book is mentioned. I'm trying my best to explain it. अच्छा, हीलियम, आपको हीलियम और थोड़ा हम लोग यूज़ पढ़ लें। हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग प्रीवियस ईयर 7 में चैप्टर रहा होगा। अगर नहीं पढ़े तो फिर कोई बात नहीं, बता देता हूँ मैं। अच्छा, हीलियम एक बलून के लिए यूज़ होता है, बलून्स के लिए। ठीक है, नियॉन यूज़ होता है बोर्ड्स में, मतलब बड़े बड़े बोर्ड्स में, बिल बोर्ड्स में। क्यों? ताकि वो लाइट्स हम लोग देख पाए। आर्गन का यूज़ को देखना पड़ेगा, क्रिप्टन का यूज़ देखना पड़ेगा। जिनॉन का सच कोई यूज़ नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रेडन का है कि वो कैंसर पेशेंट्स को रेडिएशन थेरेपी देता है। रेडिएशन थेरेपी अगर आपको नहीं मालूम, उसमें क्या होता है कि रेडिएशन के थ्रू प्रोसेस होता है, रेडिएशन जिसके थ्रू कैंसर सेल्स को मारा जाता है, वो रेडियन के हेल्प से होता है। This is an important table which you have to learn by heart. I guess you have been doing this from 7 or 6, but it's a more detailed way. So you can just take a screenshot or you can just write it in your notebook or something. अच्छा, मैंने आपको रूल बताएगा किस हिसाब से एलिमेंट्स के सिंबल पढ़ते हैं। सिंबल क्यों पढ़ते हैं वापस हम लोग पढ़ा देते हैं, क्या जाता है अगर आप भूल गए हो तो। एलिमेंट्स के सिंबल्स इसलिए किए जाते हैं ताकि हम लोग उसको छोटे फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में, बिकॉज इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू राइट द बिग नेम्स, पोटेशियम, सिल्वर, गोल्ड एवरी टाइम यू do something in chemistry. It's very irritating. No, you can't do it. You have to give symbols to it. The symbols का वही यूज रहता है। सिंबल्स देने के कुछ रूल्स रहते हैं जो कि हम लोग फॉलो करते हैं। While naming the elements, पहला रूल रहता है कि कोई एलिमेंट है उसका फर्स्ट लेटर रख दो, वही सिंबल हो गया। पर ऐसे तो बहुत सारे हैं जिनके सेम होंगे, जैसे कैल्शियम, कॉपर। तब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड लेटर को कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड खोज लीजिए मेरे को एग्जाम्पल कोई। एल्यूमिनियम, Al, ओके, you get it as Al, but कुछ एलिमेंट्स में देखिएगा, मैग्नीशियम हम लोग Mg लिखते हैं, Ma क्यों नहीं लिखते भाई? इजी रहता माँ याद रखने में, हाँ। पर Mg इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये एक और रूल है, उस लेटर को हम लोग यूज करते हैं जिसपे हम लोग एम्फोसिस डाल रहे हैं। क्लोरीन नहीं कहते हम लोग, क्लोरीन कहते हैं, इसलिए उसमें एल में एम्फोसिस पड़ता है, ईच में उतना नहीं पड़ता है, इसलिए हम Cl लिखते हैं। मैग्नीशियम, मग Mg। मैंगनीज वहाँ पे नाक से बोलते हैं हम लोग, ये सॉरी नाक से बोलते हैं, तो ये Mn हो जाता है। समझ आ गया? और ये याद रखिएगा, सिंबल्स में फर्स्ट लेटर इज इन कैपिटल, सेकंड लेटर इज इन स्मॉल। You need to remember this important table. I hope you remember it from previous classes. सोडियम का रहता है Na, क्योंकि हाँ एक और रहता है लैटिन नेम्स में लोग यूज़ करते हैं, कोई फॉरेन नेम्स में लोग यूज़ करते हैं, कि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया पर मैं लिख दूंगा साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोडियम का Na इसलिए है क्योंकि ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वो सब लैटिन नेम में, या आप अगर टेबल बना सकते हैं कॉपी में तो बना लीजिए अपना, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैग्नीशियम का ठीक है Mg है, एल्यूमिनियम का Al है, पोटेशियम का K है। क्यों पोटेशियम का K क्यों है? कीलियम है उसका लैटिन नाम। कैल्शियम का Ca, कैल्शियम का Ca, हाँ
कैल्शियम का सी है, ह्यूमिनियम का सी आर, क्योंकि हम लोग आर पे एम्फोसिस कर रहे हैं। मैंगनीज में एम एन, क्योंकि हम लोग एन पे एम्फोसिस कर रहे हैं। आयन में एफ ई, क्योंकि वो फेरम होता है। सब मैंने प्रीवियस क्लास में थोड़ा थोड़ा पढ़ाया ही होगा, अब बस रिपीट करने में क्या जाता है ना। कोबाल्ट में CO रहता है, ठीक है। निकल में नहीं रहता, ठीक है। कॉपर का CO रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कपरम रहता है। आपको मेरा हैंड राइटिंग समझ नहीं आएगा यार, अच्छे से लिखना पड़ेगा। कप रम, दिस इज आर। जेडिन में जिंक रहता है, जेडिन, क्योंकि हम लोग एन पे एम्फोसिस कर रहे हैं। सिल्वर का इजी रहता है, क्योंकि ये आर्जेंटम रहता है, दिस इज आर। जो भी थोड़ा आर में प्रॉपरली लिख नहीं पा रहा, ठीक है, आई होप यू जस्ट डोंट माइंड प्लीज। प्लैटिनम का रहता है PT, गोल्ड का EU रहता है, क्योंकि वो अगेन लैटिनम। और मर्क्यूरी का EG रहता है, हाइड्रोक्साइड। लेड का रहता है प्लम्बम, इसलिए PP। इसका एक फन स्टोरी है जो मैं लोगों को कभी और बताऊंगा, लेकिन मैं भूल जाऊंगा, पर कोशिश करूंगा बताने का। इसका एक फन स्टोरी है, वेरी सिंपल वंस। आई होप आई डोंट हैव टू रीड दीज, जस्ट सी इट। Non-metals are the easiest to deal with. Molecular structures in and atomicity. Atomicity का मतलब होता है the number of atoms present in a molecule of an element is called atomicity. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी नेट गैस ले लो, उसका एटॉमिसिटी 1 है। वो एक ही एटम से एक मॉलिक्यूल बनता है। अगर आप कंसिडर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स करो, अगर 3 मॉलिक्यूल्स हुए तो मतलब उसमें कितने रहेंगे? 3 एटम्स, है ना। समझ आ गया? ये मॉलिक्यूल्स का मैंने क्या समझाया था, मैंने H2O का एग्जाम्पल देखिए। H2 में रहता है 3 मॉलिक्यूल, 3 एटम्स, ओके। H2 उसमें 2 रहते हैं, O का 1 रहता है, तो क्या होते हैं? 3 हुए हैं। पर अगर आपको 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के बारे में बात करें, मतलब उसमें कितने रहेंगे उसमें? हाँ, अगर आपने 9 बोला तो आपने सही बोला, अगर नहीं बोला कोई बात नहीं, एग्जाम थोड़ी ना। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड एटॉमिसिटी मैंने बता दिया ये चीज। ऑल मेटल्स एंड इनर्ट गैसेस एंड मेटलॉइड्स इनर्ट गैसेस आर मोनोएटॉमिक, मतलब एटॉमिसिटी 1 होते हैं। अच्छा, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, सिंपली मैं फटाफट बता देता हूँ, जो कि बुक में शायद नहीं दिया होगा, दिया हो तो अच्छा बात है। प्रीवियस क्लास में अगर पढ़ा ही होगा आपने, डायएटॉमिक मतलब मेरे को लिखना पड़ेगा, डायएटॉमिक 2 molecules, not writing the full word. मोनो मतलब 1। ओहो, मैंने क्या किया, माय बैड, आई एम एक्सट्रीमली। डायएटॉमिक मतलब 2 एटम्स। मोनो एटॉमिक मैंने कोड दिया है, ठीक है, मतलब 1 एटम्स। ट्राई क्या होता है? ट्राई होगा 3। पॉली मतलब अगर आपने एल्जेब्रा में पढ़ा होगा, मतलब 4 और मोर देन 4। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल पॉली का इंपॉर्टेंट होता है सल्फर विच इज 8। हम लोग उसका एटॉमिसिटी हम सब नीचे लिखते हैं। O का रहता है, ऑक्सीजन का रहता है O2, डायएटॉमिक। अच्छा, इनर्ट गैसेस आर मोनोएटॉमिक। नॉन मेटल्स एग्जिबिट वाइडर वैलेंसीज एक्टिंग एज डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, मतलब उसके और भी वैलेंसीज होते हैं rather than 1। All elemental gases are diatomic except ओजोन, जो कि मैं बता देता हूँ क्या होता है।
ठीक है, ओजोन आपको मालूम ही होगा क्या होगा। अगर नहीं मालूम है तो भाई क्या बोलूँ मैं अब, मालूम होना चाहिए आपको ओजोन क्या होता है। नहीं मालूम है तो गूगल कर लीजिए क्या होता है वो। ठीक है, यप, हाँ, ये मैंने समझा दिया ना, ये था। अच्छा, ये टेबल था, मैं पीछे बेकार में समझाया। ठीक है, फिर आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन दिस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बेकार में वो टेबल बनाया। इग्नोर दिस देन, इग्नोर दिस, फॉलो दिस वन। अच्छा, ये मैंने बता दिया। हाँ, एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं पहले। मोनोएटॉमिक मेटल्स होते हैं, ठीक है, एटॉमिकली बन रहे थे, और ये सिंबल से दिया गया है, पूरा नाम हर समय नहीं लिखा जाएगा। देखो कितना इजी होता है, अगर मैं यहाँ पे इसकी सिंबल्स की जगह सोडियम, पोटेशियम, आयरन, आर्गन, ऑरम, बैटने लिखता। आर्गन क्यों बोल रहा हूँ यार, ये आर्गन नहीं है। क्या है ये जी, याद है आपको क्या है ये जी? याद करो, याद करो, याद आया? सिल्वर, लैटिन नेम्स। अच्छा, ये ट्रिक क्वेश्चन था, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मेटलॉइड्स वन होते हैं हर समय, हर समय, हर समय। नोबेल गैसेस हर समय वन होती हैं, तो हर समय वन होते हैं ये भी, इससे एक्सेप्ट व्हाट। चलो, कार्बन भी आते हैं, कार्बन ग्रेफाइट वन वन वन। अच्छा, कॉमा है, याद करके एक मत समझना इन दोनों को। अच्छा, डायटोमिक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन रहते हैं, सो ठीक है, समझ आ गया आई होप। फ्लोरीन, क्लोरीन, F2 रहते हैं, Cl2 रहते हैं, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, Br2 रहता है उसका, आयोडीन का भी 2 रहता है, ओजोन का 3 रहता है। ठीक है, पॉलीएटॉमिक एक होता है फॉस्फोरस, टेट्रा एटॉमिक मतलब 4 रहता है, और सल्फर मतलब ऑक्टा एटॉमिक। समझ आ गया? डिस्टेंस। Please also note this triple down. Atomicities are often asked in exams. Okay, they can be useful in the language of chemistry chapter, where you have to do chemical reactions. Theory and characteristics of compounds. चलिए, कंपाउंड्स आपको मालूम ही होगा, मैंने बताया था कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स कंबाइंड केमिकली टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम है क्या होता है वो, प्लीज अगेन वॉच द प्रीवियस वीडियो। ओके, यू विल अंडरस्टैंड what is a compound. Let's quickly jump into what are the characteristics of compound. They are purity and uniformity. Compounds are completely pure and homogeneous substances, मतलब वो pure substance है, again like elements, unlike mixtures which are impure. Study about mixture in the next chapter. Which mixture, मतलब ये elements, compounds, mixture एक ही chapter है, पर मैंने इसको दो में break कर दिया। हाँ, definite properties. All samples of a pure compound have an identical set of definite and physical properties. Same as element, they also have a definite property. Fixed constants, they possess fixed, definite, and fixed melting and definite boiling points. मतलब एक फिक्स टेम्परेचर में मेल्ट होंगे, फिक्स टेम्परेचर में बॉइल होंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है, एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है। People mistaken melting point of water as 100 degree. I've saw it. I've seen it. Okay. And mind you, condensation point is not 0 degree. It is 100 degree Celsius. Okay. हाँ. Definite chemical formula, they are represented by definite chemical formula which also directly depict their individual molecules. अच्छा, chemical formula में इसमें क्यों लगाते हैं कि इसमें fixed ratio, fixed composition रहता है, इसलिए हम लोग इसको एक chemical formula से हम लोग represent कर सकते हैं, जो कि हम लोग mixtures में नहीं कर सकते। चलिए, अच्छा, इसमें जो लिखा है मैं बता देता हूँ। आयरन और सल्फाइड को अगर आप मिक्स करके हीट करेंगे, काला मास होगा, ठीक है, उसका प्रॉपर्टीज अलग होगा रादर देन ऑफ आयरन एंड सल्फाइड, आयरन एंड सल्फर। अच्छा, आयरन एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, और सल्फर एक क्या है? वो सल्फर एक सब्सटेंस कहाँ गया? हाँ, सल्फर इज मैग्नेटिक नहीं है, और वो सॉल्यूबल भी नहीं है कार्बन डाइसल्फाइड में। सल्फर इज
हाँ गलत लिखा है ये गलत लिखा है, सॉरी सॉरी फॉर द, ये मत लिखिएगा आप, मैंने काट दिया, पर हाँ इट इज नॉट अट्रैक्टेड। नाइदर की जगह आप नॉट लिख दीजिए। हाँ तभी सोचो सल्फर इज सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड। अच्छा समझ आ गया। पर जो ब्लैक मास फॉर्म हुआ है, ना तो वो अट्रैक्ट हो रहा है, ना तो वो कार्बन डाइसल्फाइड में, oh sorry for that, sorry, और iron is also attracted by magnet. I apologize for the mistake. Now this table again you have to learn it, because in language of chemistry you'll see, गलत बोल दिया मैंने, देखा कंपाउंड्स। अच्छा कंपाउंड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, आपको लर्न कर लेना चाहिए, ये बेसिक्स से आपको आने ही चाहिए, ये पहले पढ़े होंगे आप। वाटर का रहता है H2O, कार्बन का रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, ऐसे बहुत सारे मैंने प्रीवियस क्लास में भी कराया होगा, पर ये थोड़ा डिटेल्ड है। एसिटिक एसिड CH3COOH रहता है, कार्बन सल्फेट CO, स्टार दे दूं क्या, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वो लोग नहीं लिखेगा कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो लोग सोडियम क्लोराइड नहीं देंगे, वो लोग दे देंगे कॉमन सॉल्ट, बेकिंग सोडा, मार्बल एंड चॉक। अगर आपको ये नेम ही याद नहीं होगा, आप ये कैसे लिख, आप फिर ये तो लिखना ही भूल जाइए, फिर आप ये लिख ही नहीं पाएंगे। पर अगर आपको ये नाम याद होगा, फिर आप ये आराम से लिख पाएंगे। समझ आ गया। स्टार जहाँ पे दे रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, बहुत गंदी तरीके से स्टार दे रहा हूँ, अच्छी तरीके से देता हूँ। सी आई बोल रहा हूँ, SiO2 सैंड होता है, वहाँ पे याद कीजिएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले है, सल्फ्यूरिक एसिड इज इम्पोर्टेंट, अमोनिया इज इम्पोर्टेंट, विनेगर इज इम्पोर्टेंट। चलिए HCl भी चलिए कर ही लीजिएगा यार, और ये तीनों तो आना ही चाहिए आपको, ये तीनों तो आना ही चाहिए, ये तीनों, ठीक है। एंड just let me give you a quick glance at the PDF so that you can just make notes. If you are not making it, just you can take the screenshots and you can make the notes. That's it for this session. I hope you enjoyed this. So yeah, that's the end of the session and the end of the chapter Elements and Compounds. Hope you enjoyed studying with me, and keep studying. Have a good day. Bye bye.